A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everyone is fine. And as you all are belong to the board student, so as I always suggest you, so today also I am suggesting you to work accordingly to the board children. The topic, children, which I am going to discuss with you today is the revision of the chapter Meeting Life Challenges. Where you all have to study about the topic stress. आपने ये जाना कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे स्ट्रेस होता है लोगों को, what are its types, what are its sources, what are its effects. But it is also very much important to know how to cope up with it. आप उसको टैकल कैसे करोगे, आप उससे ओवरकम कैसे करोगे. So this is our topic today, coping with stress. Stress क्या है? It is a pattern of response. एक तरह का पैटर्न है रेस्पॉन्सेस का जो कि ऑर्गेनिज्म करता है किसी स्टिमुलस इवेंट के टुवर्ड और जो उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है. It is a pattern of responses an organism meets to stimulus event that disturb the equilibrium and exceed a person's ability to cope. That is a meaning of stress. Now, what is the meaning of coping? What is coping? So, coping is a dynamic situation, specific reaction to stress. ये क्या है? एक तरह से सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है स्ट्रेस का. यानी कोपिंग क्या है? What is coping? Coping is a specific situation reaction to stress. Coping क्या है? It is a specific situation reaction to stress. सिचुएशन देख के अगर हम स्ट्रेस के टुवर्ड एक कोई रिएक्शन करते हैं तो वो होता है कोपिंग. इट इज अ सेट ऑफ कंक्रीट रेस्पॉन्सेस टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट दैट आर इंटेंडेड टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस. The way we cope with stress often depend on right deep-seated belief based on experience. For example, when caught in a traffic jam, we feel angry because we believe that the traffic should move faster. To manage stress, we often need to reassess the way we think and learn coping strategies. People who cope poorly with stress have an impaired immune response and diminished activity of natural killer cell. Children, you already have studied about that stress have a very devastating effect on the immune system. जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसीलिए अगर हम जो पर्सन स्ट्रेस से कोप नहीं कर पाते उनके लिए चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. उनके इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो जाते हैं और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं जो हमें वायरसेस से बचाते हैं उनकी एक्टिविटी डिमिनिश्ड हो जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है, लेस हो जाती है.
ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप अप विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस से कोप अप करना, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। Individuals show consistent individual difference in the coping strategies they use to handle stressful situations. These include both overt and covert activities. The three coping strategies given by the Endler and Parker are task-oriented, emotion-oriented and avoidance-oriented. So, हमने जाना कि स्ट्रेस से कोप अप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और सब की स्ट्रैटेजीज अलग अलग होते हैं बच्चों। इंडिविजुअल डिफरेंस है, आपने भी पढ़ा है, कोई भी एक जैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज भी एक जैसे नहीं होते। कोई स्ट्रैटेजीज यूज करता है, कोई और स्ट्रैटेजी यूज करता है अपने स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। कई लोग होते हैं जो कि आपको देखे होते स्ट्रेस होते हैं तो ये दे यूज टू सिंग द सॉन्ग, दे यूज टू लाइक लिसन द सॉन्ग, दे डू द एक्सरसाइज। समवन आपने देखा होगा कि दे स्टार्ट रीडिंग द बुक्स, दे सॉ द मूवीज और एनीथिंग, दे सॉ द टेलीविजन और दे यूज द मोबाइल or something. Like some people you have seen that when they are in stress they want to be alone, they don't want to interact with other one. तो सबकी अपनी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं स्ट्रेस से। एंडलर और पार्कर ने 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए थे, ठीक है। एंडलर पार्कर इज अ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। एंडलर एंड पार्कर इन्होंने 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताई। फर्स्ट इज टास्क ओरिएंटेड, सेकेंड इज इमोशन ओरिएंटेड एंड द थर्ड इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड। 3 स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। एंडलर और पार्कर ने टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी यानी आप टास्क मीन्स अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आप क्या कर रहे हो, टास्क ओरिएंटेड हो रहे हो। यानी कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को लेके रो रहे हो या परेशान हो रहे हो, तो वो इमोशन ओरिएंटेड होता है। और अवॉइडेंस यानी आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो परेशानी को निगलेक्ट करने से वो अवॉइड नहीं होती, वो हटती नहीं है। तो अवॉइडेंस पर लोग कोपिंग करते हैं इन तीनों तरीके से। स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए कुछ लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग इमोशन ओरिएंटेड होते हैं। मीन्स स्ट्रेस है तो जैसे रो लेते हैं, दे यूज टू क्राई, they used to show anger, okay, when they were in the stress. So वो basically क्या कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस से कोप अप कर रहे हैं। तो they used to show anger, they गुस्सा करके दूसरों पे या खुद पे वो अपने स्ट्रेस से कोप अप कर लेते हैं, या अवॉइडेंस करते हैं, स्ट्रेस को फेस नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। Task oriented, this involves obtaining information about the stressful situation and about alternative courses of action and their probable outcome. It also involves deciding priorities and acting so as to deal directly with the stressful situation. For example, schedule my time better or think about how I have solved similar problem. सो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या होती है बच्चों, जिसमें हम अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आया, हम स्ट्रेस में हैं, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सिस्टमैटिकली, ओके, एनालाइज करेंगे अपने प्रॉब्लम को और उसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड होंगे हम लोग। टास्क मीन्स हम लोग वर्क ओरिएंटेड होंगे। ये नहीं होता है कि हाथ पे हाथ रख के बैठना, ओके, वी डोंट वर्क ऑन दैट वन, वी आर टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। वी फाइंड द अल्टरनेटिव
options of that one, और we see for the probable outcome, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया कि शेड्यूलिंग द टाइम, देखना टाइम को अपने शेड्यूल करना। देन उसके बाद है कि इससे रिलेटेड अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है पहले का तो उसको भी ध्यान में रखना। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज द इमोशन ओरिएंटेड। This can involve efforts to maintain hope and to control one's emotion. It can also involve venting feelings of anger and frustration or deciding that nothing can be done to change things. For example, tell myself that it is not really happening to me or worry about what I am going to do. कई लोग जो होते हैं, वही मैंने अभी आपको जिस बताया कि जब स्ट्रेस आता है तो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं इमोशन ओरिएंटेड, जैसे रोने लग जाते हैं, स्ट्रेस होता है तो उसी से अपनी फीलिंग्स को बाहर, गुस्से में स्ट्रेस में रहते हैं तो दे यूज टू शो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, तो इससे उनका स्ट्रेस बाहर निकलता है और उनका अपना तरीका होता है स्ट्रेस से कोप अप करने का। The third one is avoidance oriented. This involves denying or minimizing the seriousness of the situation. It also involves conscious suppression of stressful thought and their replacement. Means आप क्या कर रहे हैं, जो stressful thought है उनको consciously यानी जान के intentionally repress कर रहे हैं बार बार। ये basically denying और minimize करता है situation की seriousness को। ठीक है, डिनाई करना या मिनिमाइज करना, आप सिचुएशन कितना सीरियस है आप नहीं समझ रहे हो और स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको बस डिनाई कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेस में है तो ऑब्वियसली आप टास्क ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, इमोशन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, अवॉइडेंस करके जैसे टीवी देखना, वॉचिंग टीवी, फ्रेंड से बात करना और या फिर दूसरे लोगों के साथ रहना, तो ये चीज़ें हम लोग करने लगते हैं। एक तरह से इट इज़ समथिंग लाइक प्रॉब्लम से भागना, बट ये बहुत अच्छा कोपिंग स्ट्रैटेजी नहीं होता, ये बहुत ही टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। कुछ समय के लिए तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, जैसे आप टीवी देखने लग जाओ या फिर आप मोबाइल यूज़ करने लग जाओ या आप कोई सॉन्ग सुनो, पर ये कुछ समय के लिए होता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। ठीक है, इसलिए टास्क ओरिएंटेड होना सबसे बेटर ऑप्शन है। ओके, इनके अलावा भी एक कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोपिंग स्ट्रैटेजी दी थी, वो थे लजारस एंड फॉर्टमैन। इन लोगों ने भी दो तरह के कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात कही थी, एंडलर और पार्कर के अलावा। आई होप एंडलर और पार्कर का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों, टास्क ओरिएंटेड, अवॉइडेंस ओरिएंटेड एंड इमोशन ओरिएंटेड। आगे बढ़ते हैं लजारस एंड फॉर्टमैन। लजारस एंड फॉर्टमैन अगेन अ साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है लजारस एंड फॉर्टमैन। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दो तरह के स्ट्रेटजीज की बात की है, एक है प्रॉब्लम फोकस्ड और एक है इमोशन फोकस्ड। वन इज प्रॉब्लम फोकस्ड एंड सेकेंड इज इमोशन फोकस्ड। ये दोनों टॉपिक की बात इन्होंने कही है, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन फोकस्ड। लजारस एंड फॉर्टमैन का मानना था कि कोपिंग जो है वो डायनामिक प्रोसेस है रेदर देन एन इंडिविजुअल ट्रेट, चेंजिंग प्रोसेस है। मीन्स ये चेंज होता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब कोई भी इंडिविजुअल किस तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजीज चूज कर रहा है, ये टोटली डिपेंड होता है उस पर्सन पे, उस इंडिविजुअल पे। Coping refers to constantly changing cognitive and behavioral effort to master, reduce, or tolerate the internal or external demand that are created by the stressful transition. Coping serves to allow the individual to manage or alter a problem and regulate the emotional response to the problem.
उन्होंने 2 टाइप है प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजीज अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ with behavior designed to gain information, to alter the event and to alter belief and commitment. They increase the person's awareness, level of knowledge and range of behavioral and cognitive coping options. They can add to reduce the threat value of the event. For example, I made a plan of action and followed it. मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजीज यानी आप प्रॉपरली टाइम टेबल बना रहे हो और उस टाइम टेबल को आप फॉलो भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बना के आप सिर्फ उसको रख दे रहे हो, उसको आप प्रॉपरली फॉलो भी कर रहे हो, तो डैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Emotion focus, just opposite, a call for psychological changes designed primarily to limit the degree of emotional disruption caused by an event with minimal effort to alter the event itself. For example, I did something to let it out of my system. इमोशन फोकस कोपिंग आपका जो एंडलर पार्कर ने इमोशन फोकस दिया वो उसी से रिलेटेड है, और एंडलर पार्कर की जो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज है वही लजारस एंड फॉर्टमैन की प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी है। मीन्स लजारस फॉर्टमैन में ने भी कहा हम लोग 2 तरीके से कोपिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम फोकस कर रहे हैं और इमोशन फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम फोकस जहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं और एक टाइम टेबल शेड्यूल कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। इमोशन में हम लोग वेंटिंग आउट कर रहे हैं, हम अपने सारे फीलिंग्स को लाइक थ्रू द मीडियम ऑफ योर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ट्राइंग आउट, आप फीलिंग्स को बाहर निकाल रहे हो। तो ये दोनों ही स्ट्रेटेजीज हैं जो कि कोपिंग में आपको स्ट्रेस से कोपिंग करने में मदद करती है। इनके अलावा कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना, हाउ दे कैन हेल्प द पर्सन इन कोपिंग विद द स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक भी हमको पढ़ने हैं और ये जानने के लिए कि कैसे वो हमें स्ट्रेस से कोप करने में मदद करते हैं। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आप सभी ने भी पढ़े होंगे, ओके, या इससे पहले भी इसकी नॉलेज आप सभी के पास होगी, ठीक है। तो उससे जान लेते हैं क्या क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि हेल्प करता है स्ट्रेस से कोप करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आपने भी शायद पढ़ा होगा, बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक होते हैं और स्ट्रेस अच्छा नहीं होता, इसलिए स्ट्रेस को जितना आप अच्छे से कोप अप कर सको या उसको मैनेज करो तो बहुत बेटर है। स्ट्रेस को साइलेंट किलर माना जाता है। ये माना जाता है कि इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द बॉडी एंड इट वेरी मच अफेक्ट द पर्सनस हेल्थ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इवन द कैंसर्स आर ऑल्सो लिंक्ड टू स्ट्रेस। आप बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस ले लो तो डैट ऑल्सो मे टर्न इनटू अ फॉर्म ऑफ कैंसर। सो ऑब्वियसली उसको मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करके अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। रिलैक्सेशन टेक्निक, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनकी हेल्प से आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स हो सकती है। और डीप ब्रीथिंग करके या एब्डोमिनल ब्रीथिंग करके हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें करने चाहिए। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर पॉसिबल हो सके तो वी शुड डू इट। तो रिलैक्सेशन टेक्निक इज एन एक्टिव स्किल दैट रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ इलनेसेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज।
Usually relaxation starts from the lower part of the body and progresses up to the facial muscles. Deep breathing is used along with muscle relaxation to calm the mind and relax the body. Now the next technique is the meditation procedure. Second stress management technique is meditation. ये तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, इट इज़ वेरी मच कॉमन कि मेडिटेशन करने से भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है. द योगिक मेथड जो है मेडिटेशन का वो कंसिस्ट करता है सीक्वेंस ऑफ लर्न टेक्निक फॉर रीफोकसिंग ऑफ अटेंशन एंड ब्रिंग अबाउट एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. इट इन्वॉल्व concentration that the meditator become unaware of any outside stimulation and reaches a different state of consciousness. meditation करने से पर्सन बाहर से जो भी स्टिमुलस है वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा और वो कॉन्शियसनेस के पता नहीं कौन से लेवल पे दे रीच वेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द मेडिटेशन. It totally boosts your mind, body and everything. So it is very effective. Meditation, relaxation. Then come the creative visualization. ये भी एक stress management technique है. Creative visualization. सोच, imagination. ये भी बहुत important role play करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में. It is an effective technique for dealing with stress. It is a subjective experience that uses imagery and imagination. आपने सुना होगा बच्चों बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन के थ्रू भी ठीक होती हैं. इवन आपने अगर बिहेवियर थेरेपी पढ़ा होगा तो उसमें जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड है जो कि वॉल्फ ने दिया है उसमें भी वॉल्फ भी जो थे उस फोबिया के जो पेशेंट्स होते थे इमेजिनेशन के थ्रू ही उनके फियर्स को उन्होंने रिड्यूस किया था. तो ये भी एक मेथड होता है, यानी हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करके मेडिटेशन का यूज़ करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. इसमें और इसी तरह क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी होता है. इसमें क्या होता है, बिफोर विजुअलाइजिंग वन मस्ट सेट वन सेल्फ अ रियलिस्टिक गोल as it help build confidence. It is easier to visualize if mind is quiet, body relaxed and eye closed. This reduces the risk of interference from unbidden thought and provides the creative energy needed for turning an imagined scene into a reality. सबसे पहले ये बोला जाता है कि आप एक गोल अपना बना लो और अब आपको इमेजिन करना है कि उस गोल को आपने अचीव कर लिया है. तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, योर विजुअलाइजेशन शुड बी क्रिएटिव, इमेजरी. नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज. ऑब्वियसली एक्सरसाइज से भी आपके स्ट्रेस रिड्यूस होते हैं बहुत बहुत. इसीलिए क्यों बोला जाता है कि स्पोर्ट्स प्ले करना चाहिए या अपनी हॉबीज को परस्यू करना चाहिए. जो आप को अच्छा लगता है आप उसे परस्यू करो. जैसे आप किसी को डांस करना पसंद है तो इस सब में भी एक्सरसाइज हो रहा है. एक्सरसाइज विल प्रोवाइड एन एक्टिव आउटलेट फॉर द फिजियोलॉजिकल अराउजल एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, enhances the function of the lung, maintain good circulation, lower blood pressure, reduces fat in the blood and improve the body's immune system. Just like swimming करिए, walking, running, cycling, skipping, etc. help to reduce stress. One must practice these exercises at least 4 times a week for 30 minutes at a time. एंड एवरी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो उससे पहले एक वार्म अप करो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर कूल डाउन करो. तीनों स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं. बट एक्सरसाइज करिए, इट डेफिनेटली गिव यू अ रिलैक्सेशन. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस. नेक्स्ट रिलैक्सेशन टेक्निक इज CBT. CBT का फुल फॉर्म है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक. कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक
ये भी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। इसे दिया था माइकन बॉम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक आपको किसने दी थी? ठीक है, इट इज अ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने ये टेक्निक दिया था। इसका मेन होता है कि रिप्लेस द नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट विद द पॉजिटिव एंड रैशनल वन। जितने भी नेगेटिव और इरेशनल थॉट हैं उनको पॉजिटिव और रैशनल से बदलना। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होता है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक एंड थर्ड इज द एप्लीकेशन एंड फॉलो अप। सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इन्वॉल्व डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीइंग इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन। स्ट्रेस रिडक्शन इन्वॉल्व लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस such as relaxation and self instruction, and the last one is application। उसका एप्लीकेशन करना डेली लाइफ में एंड इट इज़ accompanied by the follow अप भी करते रहते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहले आप एसेस करते हो कि क्या प्रॉब्लम है क्लाइंट को, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको टेक्निक बताते हो कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, और फिर आप उसको देखते हो कि वो अप्लाई कर रहा है कि नहीं उसे डेली लाइफ में, और फिर आप फॉलो अप करते रहते हो। द लास्ट टेक्निक विच इज लेफ्ट इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द बायो फीडबैक। एक और भी टेक्निक है इसमें, बायो फीडबैक, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है जिससे कि आप स्ट्रेस को अपने रिड्यूस कर सकते हो। इट इज़ अ प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेस by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation training। बेसिकली इसमें करते क्या हैं कि बायो फीडबैक, नाम ही है बायो फीडबैक, यानी आपके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में फीडबैक देना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है उससे रिलेटेड आपको फीडबैक देना, दैट इज अ बायो फीडबैक, ठीक है। ये देखना कि आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको ध्यान में रखना, और उसको वो बताते भी हैं और रिलैक्सेशन के थ्रू इसको ट्रीट करते रहते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे CBT में 3 स्टेजेस थे, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है अवेयरनेस, सेकंड है लर्निंग एंड थर्ड है एप्लीकेशन। ये 3 पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, अवेयरनेस, लर्निंग एंड एप्लीकेशन। अवेयरनेस ऑफ द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्या हो रहा है आपके बॉडी में, लाइक अबाउट योर हार्ट रेट, अबाउट योर ब्रीथिंग, क्या है उसके बारे में अवेयर होना। सेकेंड, लर्निंग वेज टू कंट्रोल दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन क्वाइट कंडीशन। उसको सेकेंड क्या, लर्निंग यानी सीखना कि क्या क्या तरीके से उन जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके बॉडी में हो रही है वो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं। एंड थर्ड इज ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू द कंडीशन ऑफ एवरीडे लाइफ। तो बेसिकली 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अवेयरनेस डेवलप करना, फिर लर्निंग वेज टू कंट्रोल इट, और थर्ड है उसको फिर अप्लाई करना डेली लाइफ में। सो दीज आर द थिंग्स विच वी डू इन द फीडबैक, बायो फीडबैक। So it reduces the physiological aspects of the stress by providing feedback about current physiological activity and accompanied by relaxation training। ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है जब अगर आप स्ट्रेस में होते हो और स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उनको ये टेक्निक थ्रू रिलैक्सेशन ये रिड्यूस कर देता है। So children, we all have studied about the stress management techniques such as relaxation technique, meditation, biofeedback, creative visualization, cognitive behavior technique,
and exercise. Some of the coping strategies also we have discussed, like task oriented, emotion and avoidance. I hope this topic is very much clear to you. If any question still is left, you will ask in the classroom. Thank you so much for carefully listening to me. Thank you.